Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to explore about the antimicrobial agents which are targeting the protein synthesis as well as the cell wall synthesis. So, we can discuss the chloramphenicol, we can discuss monobactams and the carbapenems. So, let us start with the chloramphenicol. Chloramphenicol is a antimicrobial agent which is isolated from Streptomyces venezuelae. ठीक है, तो the source of chloramphenicol is Streptomyces venezuelae. The structure of chloramphenicol is here. Now, it is a natural product which consists of nitrobenzene moiety, and now they are synthesized in labs. They are not available through the natural sources. If we talk about the physical properties, so they are yellowish white crystalline solid and they have a very good stability in aqueous solution. But sunlight is still a question. Sunlight may they can get degraded. So, you have to take care of this issue. Nitrobenzene is mainly responsible for the antibacterial activity. So, if we talk कि किसकी वजह से एक्टिविटी आ रही थी, तो दिस वन, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल. इट इज लिटिल बिट बिटर, सो we can mask the taste of this chloramphenicol. And now, what are the differences between the chloramphenicol and tetracycline? Why chloramphenicol is much better than the tetracycline? So, the reasons are here. They are very effective against the Staphylococcus typhi, especially now it is resistant. Okay. They are very effective in H. influenza, Bacillus pertussis, Klebsiella, Neisseria meningitis and Bacteroides fragilis, but they do not inhibit, or you can say less inhibit, the gram positive cocci and the spirochetes. They are not effective against the chlamydia, entamoeba histolytica and plasmodia, and they are not effective in against the mycobacterium, Pseudomonas, protease, fungus and viruses. So, you can say that there are some plus points and there are some minus points of the chloramphenicol. So, next move to the mechanism of action. So, as I already mentioned, it is act by the inhibition of protein synthesis, that means it binds with the ribosome, and then what it can do, it can inhibit the translocation of the protein. ठीक है ना, ये जो प्रोटीन बन रहा था, पेप्टाइडल चेन जो बन रही थी, उसके ट्रांसलोकेशन, उसके ट्रांसफर को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है. तो होता क्या है, इट बाइंड्स विद द 50th राइबोसोम, and once it bind with the 50th ribosome, what it can do, it can inhibit the formation or of the peptide bond, and once the peptide bond formation inhibited, that will lead to the inhibition of the what, protein synthesis. Now, how the protein synthesis is impaired? This is basically supported by the prevention of transfer of the elongated peptide chain. ठीक है ना. तो in previous lecture we talked about there are two sites in the protein synthesis, one is the P site and one is the A site. This is known as acceptor site and P is for the peptidal site. ठीक है, ध्यान रखने के लिए. तो एक्सेप्टर साइट पे tRNA अपना एक अमीनो एसिड ला के रखता है, फिर वो अमीनो एसिड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, जैसा प्री रिक्विजिट है. The requirement will define the length of the protein peptide. Okay, how much amino acid is required for particular protein. ठीक है, तो मान लो 4 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है सॉरी, एंड वंस इट इज फाइनलाइज, इसको यहाँ से मूव करना होगा. ठीक है ना, दिस मूवमेंट वाज ब्लॉक्ड बाय द क्लोराम्फेनिकॉल. ठीक है ना, वंस इट इज ब्लॉक्ड, व्हाट विल हैपन, द प्रोटीन सिंथेसिस इज impaired, द रिक्विजिट प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड. ठीक है ना, तो ये एक इसका मैकेनिज्म है. जनरली क्लोराम्फेनिकॉल इज बैक्टीरियोस्टैटिक लाइक tetracycline, but they you can say are very good drug when we talk in life threatening conditions. So, it is a reserved drug for especially in the conditions where the life was
एट स्टेक, ठीक है ना, लाइक सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियमिया अगर हो गया है तो देयर वी कैन यूज द व्हाट द क्लोरामफेनिकॉल. नाउ नेक्स्ट, what are the mechanism of the resistance, how chloramphenicol develop the resistance. So for this they got a factor known as R factor, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, R factor कहते हैं, ठीक है ना, और ये R factor ही रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए. जनरली क्लोरामफेनिकॉल का हमने रिजर्व में क्यों रख लिया, उसका रीज़न यही था बिकॉज जो रेजिस्टेंस था दैट इज़ वेरी ससेप्टिबल, इट इज़ वेरी ससेप्टिबल टू द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ठीक है. सो जनरली अगर हम बात करें तो एस टाइफी में एक आर फैक्टर डेवलप होता है एंड दिस आर फैक्टर इज ट्रांसफर्ड, आर इज फॉर द रेजिस्टेंट, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंट फैक्टर एक डेवलप हो जाता है एंड दिस विल ट्रांसफर टू द प्रोजेनी एंड द डॉटर सेल्स आर द रेजिस्टेंट टू द क्लोरामफेनिकॉल. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व्हाट it is how they can develop the resistance, they use the plasmid, ठीक है ना. Now this plasmid will encode some particular enzymes like acetyl transferase and this acetyl transferase is again requisite for the degradation of what, क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है ना. ये क्या करेगा, क्लोरामफेनिकॉल को डिग्रेड कर देगा, तो एसिटाइल ट्रांसफरेज आ गया तो आपका क्लोरामफेनिकॉल टूटना तय है, ठीक है. या फिर आप कह दो कि क्लोरामफेनिकॉल के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, एसिटाइल क्लोरामफेनिकॉल विच डज नॉट हैव एफिनिटी टू बाइंड विद द 50s राइबोसोम, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द दैट दे कैन डिक्रीज द परमेबिलिटी, क्लोरामफेनिकॉल विल नॉट एंटर इनटू द सेल और समटाइम्स they can decrease the affinity towards ribosomes also, ठीक है ना. So this is the general mechanisms of the resistance which is cause the issue with the chloramphenicol. Now what are the pharmacokinetic parameters? So generally they are given orally as well as parenterally, it is stable in parenteral as well as in the oral formulations, but they have a very good distribution. And when we are talking about the good distribution, that means they can penetrate the serous cavity as well as the cerebrospinal fluid, ठीक है. तो once they reach to the CSF or serous cavity, they have a very good potency in some specific infections, ठीक है. Generally they are also found in the bile, milk and placental fluid. They can conjugate with they can conjugate, they can metabolize by the conjugation, especially glucuronide conjugation, and the glucuronide conjugation is the second phase metabolic pathway which is you can say require for the मतलब आप कह सकते हो कि उसको ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना. नाउ इफ some person who is having cirrhosis or if you are trying to use chloramphenicol in neonates, so they are not able to metabolize this drug and hence they are not you can say used in the neonatals and the people who have some hepatic impairment. Okay. Now urine में they can eliminated through urine in unchanged form and the half life is nearly 5 hours. They are available as a capsule 250 milligram, 500 milligram and the dose, if we talk about the dose, so we do not take 28 gram in 14 days. So we cannot cross 14 if we having a regimen of 14 days, it which means around 2 weeks. So we do not take more than 28 grams. Okay. Now they are also available in parenteral formulations. The injections contain 0.25, 0.5 and 1 gram of vial. ठीक है. Eye drop is also available and ear drop is also available. 0.4% of eye drop is available in the market to treat the conjunctivitis and the other ocular infections, and they are also effective in the ENT infections. Okay. Now what are the side effects? What are the adverse effects which are seen with the chloramphenicol? So the most common is nausea, vomiting, diarrhea, pain in the injection site. But what are the specific one? The specific one are bone marrow depression. This is a very you can say the important side effect of the chloramphenicol. What they can do? They can causes the aplastic anemia. Okay. They can cause the agranulocytosis and thrombocytopenia, and these all conditions are very dangerous. So
use chloramphenicol precautionally, ठीक है ना. Okay, myelosuppression was also seen with the chloramphenicol, and this is due to the inhibition of the mitochondrial enzyme synthesis, but it is a reversible process. Once you stop the chloramphenicol treatment, this will be reversed. In baby, if you are using, in neonates, if you are using chloramphenicol, they may cause the grey baby syndrome. It is a very famous question which is generally asked in the competitive exams. Okay. So, what is the side effect caused by the chloramphenicol? Options are A, B, C, D, and one option is grey baby syndrome, and generally people can tick the grey baby syndrome. ये तो अब नींद में भी याद, आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना. So what is grey baby syndrome? But no one knows exactly what are the symptoms of the grey baby syndrome. So generally grey baby syndrome is nothing. Generally there is a loss of appetite in children, especially the affected child. Okay, the loss of appetite is seen. द पूप कलर इज ग्रीन. ओके, येलो कलर का ग्रीन कलर का स्टूल होने लग जाएगा. एंड द वोमिटिंग इज वेरी कॉमन. हाइपोथर्मिया आपको होगा, बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा. एंड समटाइम्स द बेबी टर्न्स इनटू एशन ग्रे. ठीक है, ग्रेइश कलर का होने लग जाए. दैट्स वाई दे दिस सिंड्रोम गॉट द नेम ग्रे बेबी सिंड्रोम. द कलर ऑफ द स्किन इज जनरली टर्न इनटू द ग्रे. ठीक है ना. तो दिस इज द what the major side effect which is seen in the neonates. Okay, and what is the dose? If you taken 100 milligram per kg of the weight approximately 2 to 9 days na, so there is a surety that the baby will get the grey baby syndrome. Okay, now what are the precautions? कहाँ हमको कैसे क्लोराम्फेनिकॉल के साथ चलना है. ठीक है ना. तो जनरली डू नॉट यूज क्लोराम्फेनिकॉल इन माइनर इन्फेक्शंस. प्लीज माइंड इट. ओके, वी clinician do not recommend the chloramphenicol in the बैक्टीरियल इन्फेक्शन और माइक्रोबियल इन्फेक्शन वेयर द इटियोलॉजी इज नॉट नोन. ठीक है ना. आपको नहीं पता किसकी वजह से हुआ है, प्लीज डू नॉट गो विद द क्लोराम्फेनिकॉल. दूसरे माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनके साथ आप जाओ. ठीक है ना. डू नॉट गो विद द मतलब आप वहाँ पर मत यूज़ करो जहाँ पर सुई से काम हो जा रहा है, वहाँ तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो इफ़ वी गॉट सम लिटिल इन्फेक्शन, गो विद द अदर AMAs. ओके, डू नॉट रिपीट द कोर्स. बार बार ये नहीं कि अभी ठीक नहीं हुआ तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अगले हफ्ते बाद. ठीक है ना. प्लीज़ डू नॉट रिपीट द कोर्स. डू नॉट यूज़ मोर देन 3 ग्राम पर डे. प्लीज़, इफ़ यू एक्सीड दिस लिमिट, there is a chance that you will get the bone marrow depression or myelosuppression, and later on you will the bone marrow will be failed. Okay, so वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है. एंड इफ़ यू आर ऑन अ रेगुलर थेरेपी ऑफ 2 वीक्स की थेरेपी पे हो अगर आप, तो आपको कंटिन्यूसली अपना रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो चेक कराते रहना पड़ेगा. देयर विल बी यू कैन से नो कॉम्बिनेशन अवेलेबल विद दिस क्लोराम्फेनिकॉल. नो AMA was available with the combination with the chloramphenicol. Now where we can prescribe chloramphenicol? So generally एंट्रिक फीवर जब स्टार्टिंग में आया था तो वहाँ पर इट इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन द एंट्रिक फीवर, बट नाउ इट इज़ द ऑब्सोलेट. यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं अब हम, बट इट इज़ द सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. बट यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अगर काम नहीं कर रहा है तब, और बच्चों में या फिर बड़ों में एलर्जी हो रही है तब. ठीक है ना. तो वहाँ ध्यान रखें, तब हम उसको क्लोराम्फेनिकॉल यूज़ करेंगे. पैरेलली इट इज़ वेरी गुड फॉर द एनारोबिक इन्फेक्शंस जहाँ पर दूसरे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स काम नहीं कर रहे थे, एंड जनरली बैक्टीरी फ्रेजिलिस की वजह से अगर हुआ है तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. इंट्राऑकुलर इन्फेक्शन स्पेशली एंडोप्थेल्मेटाइटिस जो है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. वेरी गुड चॉइस ऑफ ड्रग. सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग की अगर बात करें तो यू कैन गो विद द क्लोराम्फेनिकॉल इन ब्रुसेलोसिस, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, UTI एंड टॉपिकल कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस एंड ईयर इन्फेक्शंस अगर आप उसमें प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो प्रेफर करो कि ये बॉडी के किसी और पार्ट को टच ना करें, स्किन के किसी और पार्ट को टच ना करें. आपको आंख में डालना है आई ड्रॉप तो आप आंख में डालो बस. ये नहीं कि आपके फेस पे भी गिर रहा है या कान में डाल रहे हो तो कहीं चारों तरफ फैल जा रहा है, ऐसा नहीं. ठीक है ना. बिकॉज लेटर ऑन इट विल लीड टू द साइड इफेक्ट्स. नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ बचे हुए बीटा लैक्टम्स की. इन प्रीवियस क्लासेस we covered the penicillin and the cephalosporin. Now there are 2 beta lactam antibiotics remaining. One is the monobactam and second one is the carbapenem. So we can explore these 2 beta lactams also in this particular class. Okay, so first start with the carbapenems. Okay, so it is a newer class of the beta lactam antibiotic. Okay, and generally it has a fused beta lactam ring and it is a 5-membered ring.
अब अगर हम बात करें तो इट इज अनसैचुरेटेड एंड हैव अ कार्बन इंस्टेड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो कार्बन आएगा सल्फर की जगह पर, 5 मेंबर्ड रिंग होगा, ठीक है, और अनसैचुरेटेड होगा ये, ठीक है। और यही रीजन है वाई they are very famous, because they got this unsaturation and the substitution of sulfur, substitution of carbon in place of the sulfur will lead to the development of the resistance against the beta lactamase, यानी कि maximum carbapenems are not break down, do not broken by the बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस का बहुत मेजर पार्ट था किसमें, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। नाउ कार्बापिनम्स आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड दे हैव अ वेरी गुड पोटेंसी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ ड्रग फॉर रिजर्व, ठीक है, एंटीबायोटिक फॉर लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो आप इनको आप कह सकते हो दे आर द लास्ट लाइन एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपका किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है देन यू कैन स्विच टू द कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स, बट द कंडीशन इज स्टिल सेम, क्या कि आपका लास्ट कंडीशन होना चाहिए, मतलब जब कोई भी एंटीमाइक्रोबियल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसको पहले ही ला दिया, पहले ला दोगे तो जो बचा खुचा चांस वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ जनरली अगर हम बात करें तो इनका जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है इट इज़ अ वाइड बिकॉज दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बीटा लैक्टेमेज एंजाइम एंड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया टू डिग्रेड द बीटा लैक्टम। ओके, तो बीटा लैक्टम रिंग नहीं टूटेगा जब, तो क्या होगा, हमारा एंटीबायोटिक का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जनरली दे गेट एंटर इनटू द सेल बाय पोरिन चैनल्स, ठीक है। एंड इफ अगर हम बात करें कि वहाँ जाने के बाद ही ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अपना काम करके और उसको सेल को डिग्रेड कर देते हैं। बट अब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने की हैं। अलार्म हैज़ बीन रेज्ड ओवर द स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टू कार्बापेनम्स एंड दिस इज द अगेन सेम रीज़न which I am quoting from last lectures, irrational uses of the कार्बापिनम्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो अब धीरे धीरे कार्बापिनम के अगेंस्ट में भी क्या डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है एंड दिस इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, एंड you will surprised to know the species, the resistance is found in, the first case is found in New Delhi and that's why they got the name New Delhi metallo-beta lactamase, ठीक है। तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो बीटा कार्बापिनम के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है दैट इज NDM1 एंड दैट इज फाउंड इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यू दिल्ली metallo-beta lactamase। ओके, now there are currently no new antibiotics in the pipeline and hence this is the last choice of drug, ठीक है ना। so use with precaution, जब आपका क्लिनिशियन उसको लगा रहा है तभी आप उसके साथ जाइए, अदरवाइज अवॉइड करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बापिनम्स देख लेते हैं। सो वी गॉट द एमीपिनम, मिरोपिनम, एट्रापिनम, डोरीपिनम एंड फेरोपिनम। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन कार्बापिनम्स, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देख लो आप, एक 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर जो सल्फर उसको गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, तो एक एडवांटेज है ये, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेम जैसे बाकी बीटा लैक्टम काम करते थे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेंगे और अपनी एक्टिविटी दे देंगे, बट यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन जो होगा दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ये PVP1 पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 और 2 से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, एग्जिबिट कर देगा, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जनरली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर यू कैन से इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है, और इसकी वजह से बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है और उसका जो डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया का वो देखने को मिलता है। अब स्पेक्ट्रम्स की बात करें कहाँ कहाँ काम कर सकता है, तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, जस्ट एक ऊपर ऊपर हम देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव में भी काम कर सकता है, ग्राम नेगेटिव में, मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव में, और एनारोबिक में भी, जहाँ पर एनारोबिक में बाकी एंटीबायोटिक्स सरेंडर कर रहे थे वहाँ पर भी भैया ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। सो यू कैन से कि it is a very good drug and this is why it got the name antibiotic of last resort, ठीक है। now एक अब इंडिविजुअल ड्रग की बात कर लेते हैं, इमीपिनम की। सो इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1985। इमीपिनम जनरली जब
डिस्कवरी में था तो इसको हम कहते थे MK0787, इसका कोड नेम था, एंड इट बिकेम द फर्स्ट कार्बापिनम विच इज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शंस। ठीक है, नाउ इमीपिनम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो रिंग है दैट इज द थाइनामाइसिन। ठीक है, थाइनामाइसिन जो रिंग है इसका, और इट हैज़ अ वेरी गुड एफिनिटी टुवर्ड्स द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये एफिनिटी ही इसको स्ट्रांग बनाता है अपनी एक्टिविटी में, प्लस बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ अब सेमी सिंथेटिकली डेराइव्ड है थाइनामाइसिन, स्पेशली एंड फॉर्मेडोल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इमीपिनम के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखना है। क्या प्रॉब्लम है? किडनी से एक एंजाइम निकलता है जनरली जिसका नाम होता है रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं DHP। इमीपिनम को ये तोड़ देता है, और अगर इमीपिनम टूटा तो आपकी एक्टिविटी भी गई। तो इमीपिनम के साथ एक ही ड्रॉबैक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इमीपिनम इज नॉट सिंगली प्रेस्क्राइब्ड, इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ड्रग? दैट इज द सिलास्टेटिन। ठीक है ना, तो सिलास्टेटिन के साथ आप इसको दे सकते हैं। अब भाई सिलास्टेटिन क्या है, ये नया नाम आ गया। तो सिलास्टेटिन इज द ड्रग विच इनहिबिट द DHP। ठीक है ना, ये क्या करेगा? रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देगा। तो सिलास्टेटिन के साथ ही इमीपिनम चलता है, अकेले नहीं चलता, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड ड्रग विच हैव अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बीटा लैक्टेमेज ऑल्सो। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो बोन, जॉइंट, स्किन इन्फेक्शंस में आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेजर में अगर हम बात करें तो जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर हो गया आपको, या कहीं पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जहाँ पर दूसरे AMS काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। MRSA में ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ठीक, ओके, नो, इट इज रेजिस्टेंट टू द इमीपिनम, सॉरी। ओके, सिलास्टेटिन का खुद का कोई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं होता, इट इज ओनली फॉर इनहिबिशन ऑफ DHP। ओके, एक बार ये DHP को इनहिबिट करेगा तो इमीपिनम अपना काम अच्छे से कर सकता है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जनरली हाफ लाइफ जो है दैट इज नियरली 3 आवर्स, और जो डोज है ये पेरेंटल रूट से ही दिया जाता है, 0.25 से 0.5 ग्राम IV 8 आवर्स पर। ठीक है ना, काइनेटिक्स की बात करें, IV रूट से दे सकते हो, ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं है इसका बिल्कुल भी। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी गुड। ठीक है, ये बॉडी के लगभग सारे टिश्यूज को पेनिट्रेट कर सकता है, हर जगह पर अवेलेबल हो सकता है। इमीपिनम जनरली मेटाबोलाइज हो जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, किडनी से एक एंजाइम निकलता है DHP, डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज, वही इसको मेटाबोलाइज करता है। जनरली ये जो एंजाइम निकलता है वो आपके PCT जो है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स है, वहाँ से निकलता है, ब्रस्ट बॉर्डर से। ठीक है, इसलिए इसको सिलास्टेटिन के साथ दिया जाता है, किडनी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड समटाइम्स toxic metabolite which form after the metabolism can cause the nephrotoxicity. साइड इफेक्ट्स की अगर बात कर लें तो इंडिविजुअल हु आर एलर्जिक टू द पेनिसिलिन कैन also demonstrate cross reactivity with the imipenem, and generally nausea, vomiting, डायरिया, इस्नोफीलिया, न्यूट्रोपीनिया, इन्फ्यूजन साइट पे रिएक्शन देखने को मिलता है, कभी कभी सीजर्स जैसे कंडीशन भी देखने को मिलती है, और वो जनरली होती है क्योंकि आप इसके हाई डोज को यूज़ कर रहे होते हो। मीरोपिनम इज द नेक्स्ट ड्रग, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्रग बिकॉज इट इज़ नॉट ब्रेक डाउन बाय द DHP। ठीक है ना, यही एक इसकी खास बात है। सो इट इज़ द नेक्स्ट कंजेनर ऑफ द इमीपिनम। ठीक है, इट इज़ यू कैन से यूज्ड विदाउट सिलास्टेटिन। ठीक है, एंड इट हैज़ अ वेरी गुड पेनिट्रेशन इन द CSF एज वेल एज द अदर बायोलॉजिकल साइट्स। हाफ लाइफ इज नियरली 3 आवर्स, सेम है वैसे ही। इसका जो डोज है दैट इज़ 1 ग्राम IV रूट में पर 8 आवर्स पर। ठीक है ना, बट एक्सेसिव लेवल इसका भी किडनी के लिए डैमेज करता है और सीजर्स कॉज कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द मोनोबैक्टम्स। तो मोनोबैक्टम्स नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि अभी तक बीटा लैक्टम में आप देख रहे थे भैया 2 रिंग्स थे, बट यहाँ पर सिंगल एक रिंग है। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई दैट इज नोन एज मोनो, मतलब सिंगल, बैक्टम मतलब बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द व्हाट? बीटा लैक्टमेज, यानी कि बीटा लैक्टमेज का ये भी कुछ नहीं, बीटा लैक्टमेज का कुछ नहीं कर पाता। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हमको पढ़ना है, एजिट्रोनेम। ठीक है, एंड इट इज़ अ नेचुरल ड्रग विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोबैक्टीरियम वायलोसियम। ठीक है, नाउ दिस इज द ड्रग विच इज अवेलेबल इन USA, and very commonly the structure was very commonly compared with the सिफाजिडिम। ठीक है, सिफाजिडिम से इसके जो स्ट्रक्चर है बहुत को सिमिलर है। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी जो है दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट रिजेंबल विद द 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। नाउ दे आर वेरी गुड इन द एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉट्स,
दे हैव अ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द एंटेरोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास, बट दे आर नॉट एक्टिव इन द ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ठीक है, ध्यान रखो, ग्राम नेगेटिव में ही काम करेगा और एनारोब्स में भी काम नहीं करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम है, दिस इज द रीजन इसकी जो थेरेपी है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, संभाल कर चलानी पड़ती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जनरली ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 से भी नहीं बाइंड करेगा, 2 से भी नहीं बाइंड करेगा, इसके लिए पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 से, ये इसका स्पेसिफिक एक नेचर है। और सेम वैसे ही ये सेल वॉल को डैमेज करेगा ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करके, और उसके बाद लाइसिस और फिर अल्टीमेटली डेथ। ठीक है, काइनेटिक्स की बात करें तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन पैरेंटल फॉर्मुलेशंस, आईवी और आईएम रूट से आप दे सकते हो। ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है, इसलिए आप इसको ओरल रूट से नहीं ले जा सकते। एंड अगर आपने आईवी रूट से दिया, आईएम रूट से दिया हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पेनिट्रेबल टू ऑल द बॉडी टिश्यूज अलॉन्ग विद द CSF। जनरली इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही मेटाबॉलिज्म होता है, वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। ठीक है, एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अनचेंज्ड फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है, एंड हाफ लाइफ इज नियरली 2 आवर्स, स्पेसिफिकली 1.7 आवर्स। ठीक है ना, ओके। नाउ थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो जो लोग पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, सेफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट है तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। निमोनिया के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में, मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डियों का जो इन्फेक्शन है ना। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें भी थोड़ी बहुत एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, स्किन रैशेस देखने को मिलेगा, और साथ में थोड़े बहुत लीवर के जो एंजाइम्स है, स्पेशली सीरम एमिनो ट्रांसफरेज जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।